So, good morning, class. In the previous lecture, I have told you about okay. In the previous class, I have told about um, what is tautology, contradiction, and contingency. Okay. So, for any formula, if the truth value is always true, then it is called to be as tautology. If it is always false, then it is known to be as contradiction. And if it is sometime true and sometime false, then it is called to be as contingency. Okay. Then after we have defined some identities, different laws, and based on that we can prove any logical equivalence. Okay. So this is that is the other way to prove any logical equivalence except the truth table method. Now, moving ahead, we are talking about validity of argument. And as I have told you, any argument is a collection of premises followed by a conclusion. So, whenever we are talking about validity of argument, the purpose is to we have to find out whether the conjunction of premises, okay, this is the important line here. We are saying the conjunction of premises implies conclusion must be a tautology. Okay, then only we can say the given argument is valid. So whenever we have to find out the given argument is valid, for that purpose we have to check out that the conjunction of premises implies conclusion is a tautology. So this is the way by which we can prove or by which we can show the validity of argument using ट्रूथ टेबल. तो हम उसका टेबल बना लेंगे और टेबल की हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि ये टोटोलॉजी है या नहीं है. ठीक है. लेकिन whenever we are making this truth table, then if the number of variables increases, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 4 प्रोपोजिशनल वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो आपको 16 रोज की एंट्री करनी पड़ेगी टेबल में. 2 to the power 4, दैट इज 16 रोज की एंट्री करनी पड़ेगी. अगर हम 5 वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो 32 रोज की एंट्री करनी पड़ेगी. 6 वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो 2 to the power 6 यानी कि 64 रोज की एंट्री करनी पड़ेगी. और वो टेबल जो है मैनेज करना, दैट विल बी more complex. Okay, so that's why what we are saying, rather than doing this truth table method, we can use some inference theory. And this inference theory states that the tautologies which are already verified can be used directly as a result. Okay, and are these are named as sum of the rules. Likewise, modus ponens, modus ponens जो है, it states that if one premise is p implies q and the other premise is p, then the conclusion will be q. This is saying this one because the reason is that the conjunction of premises यानी कि p conjunction p implies q implies conclusion, that is implies q is a tautology. आप इसको ट्रूथ टेबल से वेरीफाई कर सकते हो. दिस इज अ tautology. तो दैट्स व्हाई दिस is written in the form of inference rule, and this rule is named as modus ponens. Then comes negation of q, p implies q, therefore negation of p. तो दिस इज कॉल्ड टू बी एज मॉडस टॉलन. यानी एक इम्प्लीकेशन है और दूसरा जो है राइट हैंड साइड का निगेशन है. तो उस केस में जो होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, मॉडल निगेशन ऑफ पी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का निगेशन हो जाएगा. तीसरा है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिटिविटी, where we are saying if we have two implications in which we can apply the transitive rule,
that is P implies Q and Q implies R. Therefore, the conclusion is P implies R. Because again, this is a tautology, you can verify that. So, in order to verify this, we have to consider 8 rows, that is for P, Q, and R. 3 variables are there. So therefore, we have to maintain 8 rows in the table and find out whether the truth value of this compound formula is always true. Okay, so this is known to be as hypothetical syllogism. देन कम्स डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, क्योंकि यहाँ पे डिसजंक्शन का साइन है, तो दो प्रोपोजिशंस हैं जिनका डिसजंक्शन ले रहे हैं हम, और दूसरा जो प्रीमाइस है वो किसी एक का निगेशन है, तो कंक्लूजन में जो है दूसरा प्रोपोजिशन मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे निगेशन ऑफ पी है तो कंक्लूजन में क्यू आएगा, यहाँ पे निगेशन ऑफ क्यू रहता तो कंक्लूजन में पी आता. तो दिस इज नोन टू बी एज डिसजंक्टिव सिलोजिज्म. In the same way, there is addition rule. Addition rule simply says that if there is one premise, then we can add any number of premise with that. That will also be true. अगर एक premise है जो कि true है, तो उसके साथ हम चाहे जितने premises ऐड कर ले वो भी true रहेगा, क्योंकि disjunction की property होती है कि एक true है तो दूसरा true हो या false हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. That will always be true. Okay. तो that's why this is P implies P conjunction Q. Again ये एक tautology है, तो that's why this is addition rule. इसी का अपोजिट प्रोसेस है सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन में क्या है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस हैं जो कंजंक्शन से अटैच्ड हैं तो उनको आप सेपरेटली यूज कर सकते हो, तो दिस इज कॉल्ड टू बी एज सिंप्लीफिकेशन. जैसे पी कंजंक्शन क्यू है तो यहाँ से हम कंक्लूजन में पी यूज कर सकते हैं और कंक्लूजन में हम क्यू भी यूज कर सकते हैं. तो यू कैन यूज आइदर पी और क्यू, क्योंकि ये P कंजंक्शन Q इम्प्लाइज P और P कंजंक्शन Q इम्प्लाइज Q, ये दोनों ही टोटोलॉजी होते हैं. तो दिस रूल इज नोन टू बी एज सिंप्लीफिकेशन. कंजंक्शन इसका उल्टा है कि आपके पास सेपरेट प्रोपोजिशंस हैं तो उसको आप कंजंक्शन ले सकते हो. और लास्ट वन इज फॉर रिजोल्यूशन, which states that P disjunction Q negation of P disjunction R, then the conclusion will be Q disjunction R. यानी एक वेरिएबल है उसके साथ एक दूसरा प्रोपोर्शनल वेरिएबल का डिसजंक्शन है, फिर उस वेरिएबल का निगेशन है और उसके साथ एक दूसरा वेरिएबल का डिसजंक्शन है, तो उस केस में कंक्लूजन में जो है ये दोनों मिल जाते हैं. ठीक है, तो इस P को हम रिजॉल्वेंट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ये रिजॉल्व कर रहा है, इसको दोनों तरफ से एलिमिनेट हो गया. So these are the most important 8 inference rules that you have to remember, because without this you will not be able to prove the validity of arguments. Okay. So let us say some examples are there here. State which rule of inference is the basis of the following argument. Argument क्या है? It is below freezing and raining now, therefore it is below freezing now. So tell me, first of all, what are the primitive propositions which are used in this argument? Yes, as I have told you, any argument is a sequence of premises followed by conclusion. ठीक है, तो लास्ट वाला जो होता है उसको हम कंक्लूजन बोलते हैं, और उससे पहले जो कुछ भी लिखा हुआ था दैट इज द पार्ट ऑफ प्रीमाइसेस. तो यहाँ पे एक प्रीमाइस है आपका, इट इज बिलो फ्रीजिंग एंड रेनिंग नाउ, और कंक्लूजन है इट इज बिलो फ्रीजिंग नाउ. तो देखो, हमने एक पी प्रोपोजिशन ले लिया, इट इज बिलो फ्रीजिंग नाउ. एक क्यू प्रोपोजिशन ले लिया, इट इज रेनिंग नाउ. तो आपका जो आर्गुमेंट है वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, पी कंजंक्शन क्यू. तो ये एक ही प्रीमाइस है इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट में, और फिर हमने ये लाइन से सेपरेट किया, तो इसके ऊपर जो लिखा होता है वो प्रीमाइसेज होते हैं, उससे नीचे जो लिखते हैं वो कंक्लूजन होता है. और कंक्लूजन क्या है? देयरफॉर इट इज बिलो फ्रीजिंग नाउ, यानी कि पी. तो ये कौन सा रूल है? तो दिस इज सिंप्लीफिकेशन रूल, क्योंकि मैंने बताया था सिंप्लीफिकेशन रूल में अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस जो है कंजंक्शन से कनेक्टेड हैं तो उनको आप सेपरेटली यूज कर सकते हो. ठीक है, तो दिस इज द बेसिस फॉर इन्फरेंस रूल. तो जो हमने इन्फरेंस रूल पढ़ा उसी को हम एक सेंटेंस के फॉर्म में बता रहे हैं कि कैसे ये यूज हो रहा है ना.
Yes, any queries in this? Any one of you? So, moving ahead, let us take one more example here. So, can you tell me what are the premises here? Any one of you? In this argument, what are the primitive propositions? Tell me. Roll number one, Astha. Astha, unmute yourself. You are not there? Astha, roll number five, Abhishek. Yes, sir. Tell me what are the primitive propositions in this? Sir, hypothetical. No, no. What are the primitive propositions used in this argument? If First P, thing we have to do is we have to find out the primitive propositions so that we can convert it into argument form. है ना? yes, sir. So tell me what variables or what are the primitive propositions you will use. Sir, P implies Q. No, no. P implies Q. First tell me what is P, what is Q, what you are using. Sir, P it's ran today, Okay, and Q we will not have a malware today. okay. So 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 first sentence will be P implies Q. yes, sir. Okay, and then after Q imply sorry. फिर second sentence होगा Q implies R. Sorry. Q implies R. R क्या है यहाँ पे? Okay, roll number six. Others. Others. Yes, sir. बताओ क्या क्या प्रोपोजिशंस उसमें यूज हो रहे हैं इस पूरे आर्गुमेंट में? Sir, so addition rule, sir, होगा. No, no. I'm asking just what are the propositions used in this argument? Okay, sir. प्रोपोजिशन का मतलब होता है एनी सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच हैव इट्स ट्रूथ वैल्यू ट्रू और फॉल्स. ये पहली क्लास में मैंने Uh, बताया था. yes, sir. सो Sir, टेल we मी will not व्हाट आर द एटॉमिक have a प्रोपोजिशंस. barbecue today. Sir, ये होगा preposition.
first thing, whenever we are defining propositions, we have to mention it by some proposition variable. So tell me with variables. Sir, P. P is what? Sir, will have barbecue today. Not have. We will नहीं sir, not have It's a raining. barbecue today. sir raining today. और sir Q होगा sir will not have barbecue today. The very first thing you must know what are the propositions used in the particular problem statement, है ना? तो अगर आपको ये Sir, क्लियर sir, नहीं है तो इतना आगे बढ़ने का sir, मेरे कोई फायदा नहीं है, Sir clear है. है ना? Sir P preposition है. It is raining today. और sir Q होगा we will not have a barbecue today. ओके तो एंड सर R हो जाएगा सर we will have a barbecue tomorrow. ओके तो सर आर्ग्यूमेंट फॉर्म होगा P से P to Q, Q to R और P to R. तो सर आर्ग्यूमेंट हो जाएगा हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म. सिलोजिम्स. यस सर. हाँ, तो देखो इसमें जो है, ओके दैट्स गुड. इसमें जो है सबसे पहला काम होता है, कोई कभी भी आपको आर्गुमेंट दिया है तो पहला, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोपोजिशंस सो दैट वी कैन कन्वर्ट इनटू आर्गुमेंट फॉर्म. तो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया कि इसमें जो है पी प्रोपोजिशन है, ये क्लियरली मेंशन है. देखो, लेट पी डिनोट इट इज रेनिंग टूडे, क्यू डिनोट वी विल नॉट हैव अ बारबेक्यू टुडे, आर डिनोट वी विल हैव अ बारबेक्यू टुमारो. ठीक है, यस सर. तो ये तीन प्रोपोजिशंस इस पूरे सेंटेंस में या पैराग्राफ में या आर्गुमेंट में यूज हो रहे हैं. अब अगला टास्क है हमारा, जब हमने प्रोपोजिशंस आइडेंटिफाई कर लिए तो अगला टास्क होता है जो गिवन सेंटेंस है या गिवन आर्गुमेंट है उसको हम प्रोपोजिशनल वेरिएबल के फॉर्म में, फॉर्मूला के फॉर्म में लिखें. ठीक है, तो पहला सेंटेंस है आपका, इफ इट रेन्स टुडे देन वी विल नॉट हैव ए बारबेक्यू, वी विल नॉट हैव ए बारबेक्यू टुडे. ठीक है, तो इफ देन के साथ लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये इम्प्लीकेशन होगा. ठीक है, और इट रेन्स टुडे को हमने पी लिया है और वी विल नॉट हैव ए बारबेक्यू टुडे को हमने क्यू माना है, तो दैट्स व्हाई द सेंटेंस विल बी पी इम्प्लाइज क्यू. दिस इज योर फर्स्ट प्रीमाइस ऑफ दिस आर्गुमेंट. P implies Q. If P, then Q. So that's why this is P implies Q, where P denote it is raining today, Q denote we will not have a barbecue today. The next sentence is if we do not have a barbecue today. तो we do not have a barbecue today, इसको हमने माना है Q. तो if Q, then we will have a barbecue tomorrow, यानी कि R. तो if Q then R, that is Q implies R. तो ये आपका सेकंड प्रीमाइस हो गया. और लास्ट जो सेंटेंस होता है उसको हम कंक्लूजन बोलते हैं. ठीक है, मैंने आपको बताया था एनी आर्गुमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस फॉलोड बाय अ कंक्लूजन. तो ऑल एक्सेप्ट द लास्ट वन इज नोन टू बी एज प्रीमाइसेस, और लास्ट वाले को हम कंक्लूजन बोलते हैं. तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या हो गया, तो कंक्लूजन पार्ट में आ जाएगा इफ इट रेन्स टुडे, यानी कि इफ पी, then we will have a barbecue tomorrow, then R. That is P implies R. तो ये आपका आर्गुमेंट फॉर्म है. ये जो सेंटेंस या आर्गुमेंट लिखा हुआ है इसके लिए ये इसका आर्गुमेंट फॉर्म है. मैंने आपको बताया था कि जब भी आर्गुमेंट्स दे रखे हों तो इसको हम वर्टिकली ऐसे अरेंज करते हैं. इसी को अगर मैं हॉरिजॉन्टली अरेंज करना हो तो एक सिंबल मैंने आपको बताया था टी शेप का, हम वो यूज करते हैं. तो वी विल राइट P implies Q, comma Q implies R, और इसको हम रीड करते हैं लीड्स टू द कंक्लूजन T साइन, है ना, P implies R. तो इस साइन के लेफ्ट में जो होता है वो प्रीमाइसेज होते हैं और जो राइट में होता है वो कंक्लूजन होता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दो प्रीमाइसेज हैं और ये एक कंक्लूजन है. ठीक है, तो यू कैन अरेंज इट either vertically by this way or horizontally by this way. Okay, now the next thing is we are asking for state which rule of inference is used in this argument.
तो अगर हमें इसकी वैलिडिटी प्रूफ करनी हो तो हम कौन सा रूल यूज करेंगे? तो बाई hypothetical syllogism we know that whenever P implies Q and Q implies R, then the conclusion is P implies R. So therefore, by this we can say that if we use premise 1, premise 2 and apply hypothetical syllogism, we get P implies R, and therefore this is a valid argument. Got that? क्योंकि ऑलरेडी हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि P implies Q कंजंक्शन Q implies R एंड होल इम्प्लीकेशन P implies R इज a tautology. तो उसी की हेल्प से हम ये रूल्स डिफाइन कर रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रूल है तो दैट्स व्हाई वी हैव डन दिस वन. ठीक है. अब इसमें एक चीज और है, दीक्षा यू आर ऑल्सो करेक्ट. इट डिपेंड्स अप टू यू कि आप क्यू क्या ले रहे हो, है ना. इट इज नॉट कंपल्सरी कि हम क्यू में लें वी विल नॉट हैव अ बारबेक्यू टुडे. अगर हम क्यू स्टेटमेंट लेते हैं वी विल हैव अ बारबेक्यू टुडे, तो इसको आप निगेशन ऑफ क्यू लिख सकते हो. तो it will not affect the result at all. Then also you will get the same conclusion. Okay, so that will not affect the results. Okay, so by this way we have done this one. So we have, I have told you the sentences where whatever we have studied earlier in context to rules of inference has been depicting. ठीक है. तो जो हमने पहले आपको बताया रूल्स के फॉर्म में, उसी को हम यहाँ पे सेंटेंस के फॉर्म में बता रहे हैं कि कैसे सेंटेंसेस जो हैं उस रूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. तो ये एक आर्गुमेंट है जहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म. याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है रूल्स को, कि आप देखो जब भी एक प्रेमाइस इम्प्लीकेशन हो, दूसरा प्रेमाइस जो है उस इम्प्लीकेशन का लेफ्ट हैंड साइड हो, तो कंक्लूजन में राइट हैंड साइड आता है. दिस रूल इज नोन टू बी एज मॉडस पोनेंस. ठीक है. एक इम्प्लीकेशन है, दूसरा प्रेमाइस जो है उस इम्प्लीकेशन का राइट हैंड साइड का निगेशन है, तो कंक्लूजन में लेफ्ट हैंड साइड का निगेशन आ जाएगा. दिस इज कॉल्ड टू बी एज मॉडस टॉलेंस. ठीक है. फिर दो इम्प्लीकेशंस हैं जिसमें हम ट्रांसिटिविटी अप्लाई कर रहे हैं, तो देन दिस इज कॉल्ड टू बी एज हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म. फिर दो प्रोपोजिशंस का डिसजंक्शन है और किसी एक का निगेशन है, तो उसमें आपको दूसरा प्रोपोजिशनल वेरिएबल मिल जाता है, तो दिस इज कॉल्ड टू बी एज डिसजंक्टिव सिलोजिज्म. तो इस तरीके से आप रूल्स को याद रख सकते हो. ठीक है. ये चारों जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस के हैं, मॉडस पोनेंस, मॉडस टॉलेंस, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म और डिसजंक्टिव सिलोजिज्म. तो ये चार तो बिल्कुल आपको याद होने ही चाहिए. ठीक है. कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं, तो अब मैं आपको एक प्रॉब्लम देने जा रहा हूं जिसमें हम इन रूल्स ऑफ इन्फरेंस को अप्लाई करके उसकी सॉरी उसकी वैलिडिटी को डिटरमाइन करेंगे. ठीक है. लेट अस से दिस वन. तो नाउ द नेक्स्ट इज यूजिंग रूल्स ऑफ इन्फरेंस टू बिल्ड आर्गुमेंट्स. लुक एट दिस सेंटेंस, दिस आर्गुमेंट. Read this. It is not sunny this afternoon and it is colder than yesterday. We will go swimming only if it is sunny. If we do not go swimming, then we will take a canoe trip. If we take a canoe trip, then we will be home by sunset. Leads to the conclusion we will be home by sunset. तो ये एक आर्गुमेंट है जिसका कंक्लूजन है वी विल बी होम बाय सनसेट. नाउ टेल मी, what are the atomic propositions used in this argument?
Saurya, roll number 58. Saurya Gupta, 61. Shreya Yadav, Shreya, श्रेया नहीं हो. शुभम, 62. शुभम, 65. सुरेंद्र, whoever is not replying, I will mark you absent today. 65. सुरेंद्र, 71. यशराज, Yes, sir, present. बताओ इसमें एटॉमिक प्रोपोजिशंस क्या क्या हैं. I don't know, sir. You don't know. And why you are not asking in the class if you don't know? Do you know what is proposition? Yasraj, that is not the excuse, है ना, कि I have not attended the classes before. So what you are doing in this class? When I'm asking whether it is clear or not, you are not responding. Any one of you are not responding. And now you are saying I have not attended the previous classes. That is not the way. Roll number 18, Badal. Badal, 19. Vishes, unmute yourself and answer me. Nineteen, Vishes. 26, Gaurav. 26, Gaurav. 37, Kumar Anubhav.
37 कुमार अनुभव, 38 मोहित, सर ट्राई श्योर नहीं पता। 38 चैट में मोहित। आंसर भेजे हैं सर, जी चेक कर लीजिए एक बार। क्या? चैट में आंसर भेजे हैं। नहीं, 38 मोहित। वाई यू आर नॉट अनम्यूटिंग योर सेल्फ? सिक्सटी एट विशाल, विशाल पुरवाल, 22 दीपक जैन, 'So anybody is there in the class or not? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so here I think we have to do something for that, है ना? इस तरह से क्लास तो नहीं हो पाएगी. Sir, may I? हाँ बोलो. Yes, sir. सर इसमें जो प्रपोजिशंस बनेंगे वो हम बता रहे हैं सर। फर्स्ट बनेगा पी। पी Okay, इसमें होगा। 1 सेकेंड. आदर्श, शुभांशी, आप दोनों यस म्यूट सर। म्यूट करो. यस सर। हाँ बोलो अभिषेक. यस सर। सर इसमें पी होगा। इट इज सन्नी दिस आफ्टरनून। ओके. और सर दूसरा क्यू होगा। इट इज कोल्डर देन यस्टरडे। ओके. एंड सर थर्ड होगा आर। आर ले लेते हैं, बी विल गो स्विमिंग। ठीक है. एंड एस ले लेते हैं, बी विल टेक ए कैनो ट्रिप। ठीक है. एंड उसके बाद सर अदर वेरिएबल भी लेते हैं। टी, बी विल बी होम बाय सनसेट। ठीक है. सो और सर पहला स्टेटमेंट क्या है? इसमें पहला बनेगा सर इट इज नॉट। हाँ सर, निगेशन पी कंजक्शन क्यू। ठीक है. हाँ सर। सेकंड. और सर दूसरा बनेगा बी विल गो। आर इम्प्लाइज पी। आर क्या है इसमें? वी विल गो स्विमिंग. यस सर, बी विल गो स्विमिंग। ओके. आर इम्प्लाइज पी. पी इट इज सन्नी दिस आफ्टरनून। ओके. ठीक है. यस सर। एंड सेकंड होगा we will not go. Yes sir, negation r implies s. ठीक है. Yes sir. And second होगा we will take a cannot. Sir s implies t. ठीक है. और सर इसका कंक्लूजन होगा t. टी. ठीक है. दैट्स He will करेक्ट. be home by sunset. Okay, that's correct. That's fine. Okay sir. So, as I have told you, the first thing we have to do is we have to identify what prepositions we are going to use. Okay. So here it is sunny this afternoon. मान लो हमने ये पी ले लिया, या it is not sunny this afternoon. It's up to you. आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो. Accordingly साइन लग जाएगा नॉट का या हट जाएगा, है ना? तो अगर हम इट इज सनी दिस आफ्टरनून लेते हैं पी प्रोपोजिशन, तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ पी, है ना? देन इट इज कोल्डर देन यस्टरडे, इसको हमने क्यू मान लिया. वी विल गो स्विमिंग, इसको हमने आर मान लिया. वी विल टेक अ कैनो ट्रिप, इसको हमने एस मान लिया. वी विल बी होम बाय सनसेट, इसको हमने टी मान लिया.
तो P, Q, R, S, T ये 5 इसमें प्रोपोजिशनल वेरिएबल यूज होंगे। अगर हम इसी को ट्रूथ टेबल से करने जाएं तो आपको 2⁵ यानी कि 32 रोज की एंट्री करनी पड़ेगी। 32, हाँ 32, ठीक है। तो दैट विल बी मोर कॉम्प्लेक्स। नंबर ऑफ कॉलम्स तो होंगे ही, रोज जो है 32 है। तो आप सोचो वो टेबल कितना कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको रूल ऑफ इन्फरेंस है या इन्फरेंस रूल से जो है इजीली हम 4 to 5 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हमें प्रोपोजिशंस मेंशन करने होंगे। तो लेट P डिनोट इट इज सनी दिस आफ्टरनून, Q डिनोट it is colder than yesterday, R denote we will go swimming, S denote we will take a canoe trip, and T denote we will be home by sunset. तो ये 5 प्रोपोजिशन इस पूरे आर्गुमेंट में यूज हो रहे हैं, ठीक है। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्मूला, ठीक है, प्रोपोजिशनल फॉर्मूला। तो इट इज नॉट सनी दिस आफ्टरनून, ये हो गया आपका, क्योंकि इट इज सनी को हमने P माना हुआ है, तो इट इज नॉट सनी हो जाएगा निगेशन ऑफ P। तो पहला सेंटेंस हो गया आपका निगेशन ऑफ P, और एंड लगा है तो यानी कि कंजंक्शन आएगा। और इट इज कोल्डर देन यस्टरडे, इसको हमने Q माना हुआ है, तो फर्स्ट सेंटेंस हो गया निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q। फिर दूसरा सेंटेंस है वी विल गो स्विमिंग ओनली इफ इट इज सनी। आपको याद हो P इम्प्लाइज Q को मैंने बोला था इफ P देन Q, ये तो होता ही है। साथ में अगर हम ओनली इफ के साथ लिखना चाहें तो हम इसको बोलते हैं P ओनली इफ Q। अगर ये केवल इफ लिखा होता तो हम इसको Q इफ P बोलते हैं, लेकिन ओनली इफ के साथ P ओनली इफ Q बोलते हैं। तो इसका मतलब P और Q हम क्यों बोल रहे हैं, तो उसका रीजन ये है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन किसको इम्प्लाई कर रहा है। तो ओनली इफ में जो है ये पार्ट इसको इम्प्लाई करता है, ये P की तरह काम करता है और ये Q की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका हो गया क्या, वी विल गो स्विमिंग, क्या लिया हमने R, तो ये हो गया R इम्प्लाइज इट इज सनी, इट इज सनी का मतलब P, R इम्प्लाइज P। ये हो गया दूसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस है वी विल इफ वी डू नॉट गो स्विमिंग, तो वी विल गो टू स्विमिंग R है, तो डू नॉट गो यानी कि निगेशन ऑफ R हो गया। और इफ देन के साथ लिखा है तो इम्प्लीकेशन होगा वी विल टेक अ कैनो ट्रिप, वी विल टेक अ कैनो ट्रिप को हमने क्या लिया है S, तो ये हो गया S। और फिर अगला सेंटेंस है इफ वी टेक अ कैनो ट्रिप यानी कि S इम्प्लाइज, इफ देन है तो इम्प्लीकेशन होगा वी विल बी होम बाय सनसेट, इसको हमने T माना है, तो ये हमने लिख लिया T। तो इस आर्गुमेंट में ये 4 प्रीमाइसेस हैं और इसका कंक्लूजन आपको जो दिया है दैट इज T। अब आपको इस आर्गुमेंट की वैलिडिटी फाइंड आउट करनी है कि ये एक वैलिड आर्गुमेंट है या नहीं। तो ये तो हमने फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट टास्क इज टू वी हैव टू फाइंड आउट द वैलिडिटी ऑफ दिस आर्गुमेंट यूजिंग रूल्स ऑफ इन्फरेंस। तो हमने जो पिछले रूल्स पढ़े उनको अप्लाई करके हम इसकी वैलिडिटी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो दिस विल बी डन इन द नेक्स्ट क्लास, okay, because many of you are not there, and from next class I have to do something for that, okay. So by this way we can find out that whether a given argument is valid or not। तो इसको हम करने जा रहे हैं रूल्स ऑफ इन्फरेंस से, ठीक है। एनी वन ऑफ यू कैन यू टेल मी हाउ वी कैन डू दिस? सर तो आप मतलब लास्ट स्टेटमेंट जो लिखा जाता है वो इन सब को यूज करके और रूल्स ऑफ इन्फरेंस को यूज करके आपको ये कंक्लूजन डिराइव करना है। दिस इज द टास्क। द टास्क इज टू यूज द प्रीमाइसेस एंड रूल्स ऑफ इन्फरेंस टू लीड टू कंक्लूजन। सर एक बार वो रूल्स वाला पेज देखना पड़ेगा। ये है रूल्स, मैं आपको दिखाता हूँ।
These are the rules. Okay, thank you, sir. किस में हम कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं so that we can lead to conclusion T using these सर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। 4 premises. जस्ट रिमेंबर, आपको कौन सा रूल यूज करना है ये इस बात पे डिपेंड करता है, हमेशा हम रिजल्ट ओरिएंटेड मूव करते हैं, है ना। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि वेदर बाय एनी हाउ यूजिंग दिस प्रीमाइसेस एंड दिस रूल्स वी कैन गेट टी। ठीक है, तो आपको उसी डायरेक्शन में थिंक करना होगा, उसी डायरेक्शन में सोचना होगा। ठीक है, आप इसको ट्राई करना, अगली क्लास में मैं इसका सोल्यूशन डिस्कस करूंगा आपसे। Okay, एक तो सबको दिख रहा होगा, दिस इज निगेशन ऑफ आर इम्प्लाइज एस, दिस इज एस इम्प्लाइज टी। इन दोनों में हम क्या लगा सकते हैं? Hypothesis. हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, है ना, क्योंकि Yes, ये sir. ट्रांसिटिविटी को फॉलो कर रहा है। ये निगेशन ऑफ आर इम्प्लाइज एस है और दूसरा एस इम्प्लाइज टी है, तो इन दोनों में एच एस रूल लगाने से आपको क्या मिल जाएगा? निगेशन ऑफ आर इम्प्लाइज टी। ठीक है, एंड सर इस साइड सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू में, तो यहाँ हाँ, ऑफ तो यहाँ से पी आ निगेशन ऑफ जाएगा। पी मिल जाएगा और और इसके साथ जब आर इम्प्लाइज पी और निगेशन ऑफ पी में हम क्या लगा सकते हैं? मॉडस टॉलन। यस सर, तो इससे मॉडस हमें टॉलन यस ये सर मिल तो सर जाएगा मॉडस निगेशन ऑफ, टॉलेंस हो आर जाएगा मिल सर जाएगा, के लिए। हाँ मॉडस टॉलेंस लगाएंगे तो निगेशन ऑफ आर मिल जाएगा। और निगेशन ठीक है, आर और निगेशन निगेशन आर ऑफ आर इक्वल्स और टी, निगेशन ऑफ आर इम्प्लाइज टी। फिर से मॉडस टॉलन लग जाएगा, टी आ मॉडस जाएगा। टॉलन नहीं, मॉडस पोनेंस, पोनेंस लगेगा सर। ये सीधा है अच्छा हाँ ये सीधा है, ठीक। है ना। तो निगेशन ऑफ आर और निगेशन ऑफ आर इम्प्लाइज टी में मॉडस पोनेंस लगा लिया, यू विल गेट टी। तो देयरफॉर दिस इज ए वैलिड कंक्लूजन। तो इसी को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इलॉबरेट करके बता दूंगा, जो आपने बताया वही करेक्ट है। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू ऑल, मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू।